कोई एक काम में है तो उसको पहले कंप्लीट करे और फिर उसके बाद में सेकंड टास्क, तो टास्क बाय टास्क। और जैसे कि मैंने कहा ना, एक आदत बना ले कि हम मतलब शेड्यूलिंग कि ये काम सबसे पहले कौन सा प्रायोरिटी पे है, कौन सा सेकंड है, तो ये और एक थोड़ा सा फास्ट काम करने की आदत भी हमें डालनी पड़ेगी। अदरवाइज हमारा हम देखेंगे कि बहुत सारा हमें समय जो होता है ना हमारा, वो दिन में ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। कभी मोबाइल पे अगर हमने देखा कि स्क्रीन टाइम हमारा कितना है, तो पता चलेगा कई कई बार तो 6-6 घंटा हो जाता है। तो उसमें से हम रियली कुछ काम का है या टीवी भी देख रहे हैं या जो भी हमारा दूसरी चीजें हैं, तो कितना समय हम हमारे इसके लिए यूज कर रहे हैं। तो एक चेकलिस्ट बनाए एवरी डे। मोबाइल में लिखना हो तो मोबाइल में लिखिए, टाइप कीजिए, या मतलब पेपर ऑन पेपर करके। I'm Jitendra Singh, banker turned entrepreneur and author of the book Perfect Mastering the Art of Selling. I welcome you to read my story where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs and more. Today I have with me Dr. Amol Deshmukh. He serves as a principal at Nagpur Institute of Technology and holds a Ph.D. in electronics engineering from VNIT Nagpur, an alumnus of IIM Nagpur. He completed an executive management course in strategic management. His illustrious career includes the role of Deputy Director at Raisoni College of Engineering, an autonomous institute. He has received several prestigious awards such as the Idols of Maharashtra-Working Professionals Award by Sakal Media in 2022, Excellent Teacher Award by Lokmat Media in 2021, and Most Distinguished Principal of the Year Award by Education Excellence, among others. His academic achievements extend to international patents, numerous publications, and guiding research scholars in their pursuit of PhD degrees. Beyond academia, he is a talented painter, an accomplished lyricist and singer, and an active promoter of art-related activities through his organization, Amol's Art Gallery. With extensive contribution in both the academic and creative realms, he is a multifaceted professional whose diverse talent and accomplishments enrich the field of education, art, and music. Today, he will be discussing with us about his life journey. So let us hear from him. Welcome, Amol sir. The platform is open, and now over to you. Good evening, Jitendra. Thanks a lot for having me here. And yes, first of all, let me thank you for giving me the opportunity to talk about the life journey. Now, as we grow right from our childhood, and then when we enter into our professional arena, a lot of challenges we face. And in the due course, we forget to cultivate ourselves, give time to ourselves, and that is more important to have the balance of life. I'll say it is very much essential because it gives us the energy. Because there are a lot of challenges in our profession. I mean, take it any profession, I'll say. So due to that, it's always draining. Our energy is always draining, and we feel that we are losing somewhere in our journey. So to keep us alive, what is required is that give time, because I think we do have ample of time. If we consider 24 hours as such, and for a week, we can definitely devote some time for ourselves, pamper ourselves. So it's altogether a different kind of energy. First of all, I'll say we need to be aware of what are our hobbies, passion, and what are our strengths. The moment we become aware, we need to give some time, take efforts that how we can progress, and then ultimately how we can excel in that particular front or on that particular front, I'll say. So right from my childhood, I was fond of paintings, doing a lot of sketches. But as we started the journey, somewhere in our career, a moment comes when we are too much busy, in making our growth. It was my passion to start a career, to have a career in education. So that's why I got passed out in 1996. And then after completion of my engineering, I worked in an industry. Then I was there with the government college, also Government Polytechnic at Mumbai.
for 2 years. I was there also. I like to say that Sonu Sood was my classmate. He has also done his engineering from Nagpur. So I have seen him very closely, and for 4 years we were together. And then after completion of those 2 years at the government college, my passion was, to go for higher studies. So I left that particular job. So people were saying, why you are leaving, government job and all that. I'll say, I used to say that my passion is altogether different. And I appeared for GATE examination and then took admission for PG. And after completion of that, 2001, I have rejoined, this particular profession. And then slowly in the field of education, I was doing my research also, then guiding students, because the ultimate good thing about this particular profession is that you are surrounded by students, and those students give you a different kind of energy, and you are guiding, mentoring, and sometimes learning from them also is also important. So it so happened that during the course of time, I lost my touch with my painting, singing, and all that. During the college time, I used to sing, and we used to have a lot of fun. But ultimately, then what happened is that in the run for the professional career, all these hobbies I was forgetting. And then it was after 2016-17 somewhere, I thought that let us now once again start these cultivating these hobbies. So it so happened that idea of starting Amol's Art Gallery came to my mind. And then I thought that why not to have a proper platform wherein we can organize so many other events, exhibitions, and kind of a platform wherein we can promote the art. And then slowly I started painting. And portraits is, I like to make portraits. So I made lot many other things. And then during the period of COVID also, when the whole world was shut down, there was ample of time when I used to think, and then once again started doing my other hobbies. So after 2016, I thought that yes, I can once again rejoin my singing. And then I have a very good friend at Bollywood, Mr. Siddharth. He is associated with Balaji Telefilms. He said that yes, we can do something. So from his contact, I met Mr. Vijay Kher, who is the Bollywood producer as well as the distributor. He's having his own company, Ashirwad Movie Tones, and having a Studio Box. So I went to meet him. My son Soham, he is now in final year engineering. So he was also with me. So we both went and then met with sir, and we were discussing a lot of things. Then he said that, Amolji, you have a very good voice. You have a bass in your voice, but why do you want to do all these cover songs only? I said that yes, I wish to develop it as a hobby. So he said that don't limit it to only these cover songs. मुझे लगता है कि आपको देख के मुझे लगता है कि आप शायद अच्छा लिख पाएंगे. So I came to home, and then these thoughts were lingering in my mind. So immediately next day, I remember it was a holiday. So I sat down and then started writing whatever came to my mind. And to my surprise, I have on that particular day, I have completed one full song. I have written one good song. And then immediately I called him, विजय जी मैं मिलना चाहता हूँ. तो बोले हाँ बोलिए. मैंने कहा कि आपने जैसे कहा तो मैंने एक गाना लिख दिया. तो बोलते क्या बात है, मतलब बिल्कुल, तो आप कहे तो मैं आ जाऊँ और सुनाता हूँ. तो देन आई वेंट, सर ने सुना, और सर का जो ही इज वेरी गुड एट ऑल दिस आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज. उनका स्टूडियो भी है और 500 से ज्यादा फिल्म्स वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं. सो देन ही सेड दैट ये तो गाना तो बहुत अच्छा बन गया है, हम इसको जरूर करना चाहेंगे. तो ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा और अलग अलग टॉपिक्स पे लिखना चालू कीजिए. मैंने कहा हाँ बिल्कुल श्योर. तो आप मुझे बताएं कि कौन से इस पे आप. तो उन्होंने कुछ थीम्स के ऊपर हमने डिस्कस किया, और उसके बाद में बहुत ही कम समय में मैंने 3-4 गाने और कंप्लीट कर लिए थे. सो आई वाज एक्साइटेड. तो उन्होंने कहा कि अब अच्छा एक कलेक्शन हो गया है. देन आई अप्लाइड फॉर कॉपीराइट्स भी अभी तक मेरे ख्याल से
12 to 15 सॉन्ग्स कॉपीराइट हो चुके हैं. सो देन सर ने कहा कि ये जो है हम कुछ बड़ा करेंगे, छोटा करने के इसमें मत रहिए, थोड़ा सा बड़ा सोचेंगे और बड़ा करेंगे. सो देन ही सेड दैट कुछ ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर हम काम करेंगे और कुछ एल्बम बनाएंगे. देन आई सेड दैट इट्स ओके. तो उसके बाद में पहला गाना जो था दिल दे दिया, तो सॉन्ग. सो देन यंग होमी प्रोडक्शंस के मिस्टर अतुल गुप्ता एंड प्रशांत मराठे दोनों बहुत ही टैलेंटेड है. दे आर द म्यूजिक डायरेक्टर्स, खुद गाना भी गाते हैं और सिनेमेटोग्राफर और वीडियो भी शूट करते हैं. तो हमारी एक टीम बन गई और स्लोली मुझे पता नहीं बट आई वॉज गेटिंग इन्वॉल्व लाइक एनीथिंग. सो हमने पहला गाना शूट किया. आई रिमेम्बर इट वॉज, मतलब उसके पहले तो मतलब अलग स्टूडियोज के साथ में काफी सारे गाने किए थे. टिकअप स्टूडियो जिसमें अश्विन गोथवाड़ एंड राहुल वांदे, दीज आर ऑल्सो, दे ऑल्सो बिलोंग टू नागपुर. उनके साथ में मैंने काफी सारे रिकॉर्डिंग्स और कवर सॉन्ग्स किए थे. और मुझे जो है जगजीत सिंह जी का आवाज बहुत ही अच्छा लगता है और बचपन से मैं उनको सुनते आया हूँ. सो जगजीत सिंह के गाने काफी मतलब कवर सॉन्ग्स भी किए. तो उसके बाद में जो है ये पहला गाना आई रिमेम्बर समवेयर अराउंड अगस्त 2022. तो सर ने जैसे कहा था कि कुछ नया करेंगे और बड़ा करेंगे. ठीक है. तो देन ये पहला हमारा दिल दे दिया रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद में हमने वीडियो शूट करना था. तो विजय सर ने कहा कि जो बेटा है मेरा सोहम, तो उसी को ले लेते हैं, उसके लुक्स भी अच्छे हैं. तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब वो कर रहा है. तो देन हमने एक लोकेशन के ऊपर नागपुर के पास में ही है, सो उसका शूटिंग भी हो गया. और वो शूटिंग होने के बाद में वीडियो एक मतलब जैसे एडिटिंग में रहता है, तो उसके बाद में वो वीडियो भी अतुल ने बनाया, अतुल और प्रशांत ने. और आई रिमेम्बर कि 30th of September लास्ट ईयर 2022 आई गॉट एन अटैक. इट वाज लाइक तो मेडिकल प्रॉब्लम हो गया. That was after releasing the song. No, before release of the song. अच्छा, every editing like video editing and everything was done. Release Yes. हुआ था. Yes. And then रात में ही मुझे तकलीफ हुआ. I was carried to hospital. एंजियोप्लास्टी हो, स्टेंट वगैरह सब हो गया था. सो उसके बीच में फिर ये डिस्टर्बेंस आ गया था. करीबन 2-2.5 महीने तक तो हम कुछ नहीं कर पाए. तो मेरा ऐसा इच्छा था कि जल्दी से ये रिलीज हो जाए. वी गॉट हम एक्साइट हो जाते हैं कि अभी ये गाना बन गया है, कब जल्दी से आ जाए, कहीं पे भी हो. मेरा भी यूट्यूब चैनल है अमोल देशमुख ऑफिशियल. सो मेरा इच्छा था कि उसी के ऊपर वो कर दे. लेकिन जैसे कि सर ने कहा था प्लीज वेट करना, मतलब जल्दबाजी में क्या है ना कि थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं हम. सो ही सेड दैट कुछ बड़ा करेंगे. देन I became the member of Screenwriters Association of India, जिसमें कि बॉलीवुड के काफी सारे स्क्रिप्ट राइटर्स, डायलॉग राइटर्स. So since like this is your journey, it's been like going through perfectly. You had an attack. Life is quite uncertain. Then you started working on further again after 2-3 months of rest. So before we move further on to this, I'd like to ask you, like, how did your past life, like when you were growing that life, you would be having certain thoughts related to your career options and all. So from there, how did your past life has affected the person you actually wanted to be in your life and what you are? So it's moreover childhood thoughts to your profession and now to your passion. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज लाइफ में प्लान्ड ऐसा कुछ होता नहीं. एंड व्हेनेवर वी आर प्लानिंग I'll say very few people can make it as per their plan. So my planning was eventually I wanted to be in this education field, and that's why purposefully I have appeared for GATE examination. Then I did my Ph.D. from VNIT, one of the leading institute of the nation. And then 2010 I have completed my Ph.D. And then my planning was to excel in the field of education. I mean, to do research, to teach students, to mentor students, and do whatever education field requires. So but I'll say one thing was on my mind, to excel in whatever I will be doing, whether it is education field or whatever hobbies or whatever other kind of the things. So my right from childhood, you have a habit of doing some of the things. So वो मुझे काफी हद तक अच्छा सपोर्ट करती है ये सारी जो चीजें होती है ना, बिकॉज यू वांट टू डू वेरी डिटेल्ड थिंग्स
उसमें पूरा जी जान लगा के हम करना चाहते हैं कि ये चीजें करनी है, वो चीजें करनी है। तो टू एक्सेल इन एजुकेशन फील्ड, दैट वाज माय एम एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके लिए फिर जो करना है वो हम मतलब मैं करता था, रिसर्च एंड ऑल दैट। आई गॉट पेटेंट्स, सो आई वाज वर्किंग ऑन अलॉन्ग विथ माय स्टूडेंट्स। सो हम काम कर रहे थे ब्रेन मशीन इंटरफेस पे। सो आई थॉट दैट व्हाई नॉट टू कैप्चर दिस पर्टिकुलर थिंग। सो हमने एक मशीन बनाया जिससे कि काइंड ऑफ अ व्हील चेयर। तो आपको पता होगा कि जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं वो मतलब खुद से कुछ कर नहीं पाते। तो हमने जो डॉक्टर्स जो यूज करते हैं, न्यूरोस्काई करके सेंसर होता है जो न्यूरोसर्जन्स यूज करते हैं, सो हमने उसको क्रैक किया। देन वी हैव मेड अ मशीन। तो उससे वायरलेसली we can capture the thoughts, I will say the brain signals. फिर हमने उसको amplify करके then we gave a control it to the wheelchair। और जितना ज्यादा आपका concentration होगा तो you will be able to increase the speed of that particular wheelchair। ओके, So we सो got a patent for that also। खुद से वो ऑपरेट कर सकता है। हाँ, यस यस। सो अमेजिंग। काइंड ऑफ बहुत सारा रिसर्च हम कर रहे थे। सो ये पूरे फील्ड में सिर्फ कुछ अच्छा करना, यही एक दिमाग पे था। और उसी को लेकर हम मतलब आगे चल रहे थे। तो जैसे कि एजुकेशन फील्ड में देयर आर लॉट ऑफ स्कोप फॉर डूइंग इनोवेशंस, लॉट ऑफ इनोवेशंस वी कैन मेक। सो रिसर्च पेपर्स, तो बहुत अच्छे तरीके से आप गेट इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। सो बहुत सारे जर्नल्स, कॉन्फ्रेंसेस। देन आई हैव गाइडेड अराउंड 7 रिसर्च स्कॉलर्स हु हैव कंप्लीटेड PhD अंडर मी। तो ये जो है 5 बुक्स आई हैव रिटन, एंड देन आई हैव गॉट रिसर्च ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑल्सो, जो AICT जो अपेक्स बॉडी है। सो 2-3 grants also, research grants I have got. I was the coordinator for World Bank project also, Technical Education Quality Improvement Program। Around 15 crores project we have under। So ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे इसके अलावा भी जो भी डोमेन में एजुकेशन में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है वो हम करते गए। और बट यही एक दिमाग में था कि कुछ अच्छा करे, कुछ अलग करे। तो बस यही करते, हाँ, यही परफेक्शन की ओर, मतलब जो करे वो अच्छा करे, परफेक्शन के साथ में करे। और इसी में क्या हो जाता है ना, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। आई मीन यू गेट स्ट्रेस आउट। यस यस, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू मेक अ बैलेंस आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो कोविड के बाद में तो काफी सारी सिचुएशन ही चेंज होगी। ऑनलाइन एजुकेशन पे हम आ गए। वो पीरियड में भी हमने काफी सारे ये किए। हमारे भी इंस्टीट्यूट में, नागपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने काफी सारे इनिशिएटिव्स हमने चलाए। तो यू नेवर नो कि लाइफ आपके साथ में किस तरीके से रातों रात लाइफ चेंज भी हो सकती है, अच्छे तरीके से या अदरवाइज ऑल्सो। बट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रांग इनफ to have anything in life। Right. So, sir, if I ask you, like you already answered this about your things you are passionate in your life. So that is art and music. You already working on it, and like we were talking about your releasing date of that when tech, and after that you started again on this journey. So how is the thing working towards your passion? तो हमने मतलब उस समय ये जो डिस्टर्बेंस में, मतलब मेडिकल डिस्टर्बेंस आया था, तो एक सेकंड के लिए मुझे भी लगा था कि अब आगे क्या होगा। जस्ट लाइक आई वाज इन द हॉस्पिटल। बट उसके बाद में मैंने कहा कि जो भी हो कुछ अच्छा ही होगा और हम करेंगे। सो देन उसके बाद में विजय सर ने कहा कि कुछ अच्छा करते हैं, जैसा उन्होंने कहा था। तो ही सेड दैट जल्दबाजी में हम कहीं पे भी रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार गाना रिलीज हो जाता है तो फिर बाद में मुश्किल हो जाती है। सो देन उनके हेल्प से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ टाइम ऑडियो कंपनी के साथ में। टाइम ऑडियो, जिसमें बचपन से हम देखते आए कि टाइम के साथ में वीडियोस होते थे, पिक्चर्स बनती थी, बड़े बड़े बैनर वो होते थे, तो कैसेट्स भी उस जमाने में रिलीज होती थी। तो आई वाज सो हैप्पी कि एक ऐसे बैनर के साथ में जो बचपन से हमने देखा है, कभी सोचा नहीं था, बट ऐसे बैनर के साथ में मैं सॉन्ग भी कभी कर पाऊंगा ये मैंने सोचा नहीं था। तो विजय सर ने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में करीबन मार्च अप्रैल में देन हमारा पहला गाना आया, और उसके बाद में सेकंड सॉन्ग भी हुआ। दिल दे दिया वाज द फर्स्ट सॉन्ग, एंड देन दिल मेरा बोले लव यू वाज द सेकंड सॉन्ग। तो ये लिरिक्स जो है वो सबको पसंद आए, और
दिल दे दिया रिलीज होने के बाद में मतलब यूट्यूब पे कुछ ही दिनों के में 1 लाख व्यूज भी क्रॉस कर लिए थे। अभी भी अच्छा चल रहा है और ये 2 गाने उसके बाद में हो गए। अभी तीसरा गाना हमारा आ रहा है, मैं उठ चला। सो दैट विल ऑल्सो बी विद दी टाइम ऑडियो। तो ये पूरे प्रोसेस में अलग अलग थीम के ऊपर गाने, जैसे कि सर ने कहा था कि जैसे हमको लगता है कि सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग ही हम लिख पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ गजल्स भी फिर उसके बाद में मैंने लिखी जो अभी रेडी है, और आने वाले समय में हम करेंगे जो टाइम ऑडियो के साथ में या दूसरे बैनर के साथ में भी ये रहेगा। तो एक अच्छा फीलिंग आता है कि जो आपने सोचा नहीं था बट जो आपका हॉबी है, पैशन है, उसको समय दे पा रहे हैं। पूरा हफ्ता बिजी जाता है, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मतलब छुट्टी के दिन भी या कहीं मन न लगे या कहीं कुछ अच्छा ना लगे तो स्टूडियो में जाके बैठ गए, गाना ही कर लिया, तो एक अच्छा फीलिंग उसमें आ जाता है। Right. And more importantly, sir, after seeing you, जब हमारी पहली बार बात हुई थी, and you shared me your video link and all. So Yeah. first thing which came to my mind is like you are singing, and the person who is in that video is your younger brother, which I later came to know that he is your son. So Yes, it's a compliment to you that वो लगता नहीं है कि आपकी age जो है उतनी होगी. And you look quite young, and also most important thing is like when I saw you singing, I also felt like एक क्या कहते हैं curiosity और एक interest to know you more better, and that was the thing. And also I got an opportunity, that's God's grace की हम बात कर रहे हैं. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू राइटली पॉइंटेड आउट, पैशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और पैशन आप कभी भी कहीं से भी किसी भी तरह से शुरू कर सकते हो, नॉट नेसेसरीली कि भाई आपको कोई एज स्पेसिफिक चीज है. वॉट एवर यू वांट, यू लव वॉट एवर यू वांट टू डू, यू स्टार्ट इट इमीडिएटली, because life is uncertain, and you never know how things happen. So you already shared about your work and experiences, sir, but on to this further, like anything you would like to add here which you were working or you are like thinking to work on? Yes, I'll say that पेंटिंग में तो बहुत कुछ करना है अभी. हाँ. एक बुक भी मैंने स्टार्ट किया है, मैं बेस्ड ऑन माय पेंटिंग्स, की कलर्स ऑफ लाइफ, लाइक so explaining what are my feelings about my paintings and how we can elaborate more with the colors. So that I'm working on. और सिंगिंग में तो खैर अभी काफी सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, एंड टचवुड अभी तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. सुनो ना संगमरमर जो मेरा सॉन्ग था वो भी एक, एंड ऑल दिस सॉन्ग्स आर अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, जियो सावन, हंगामा एंड ऑल दैट. तो ये एक अलग आजकल की दुनिया में ट्रेंड चल रहा है ना, जैसे डिजिटल वर्ल्ड में. सो बहुत अच्छा लगता है कि वी आर ऑल्सो डूइंग समथिंग. सो आने वाले समय में यस, लॉट ऑफ प्लान्स आर देयर ऑन माय माइंड. सो ये जो होता है ना, हम अपने प्रोफेशन में तो एक, जैसे कि मैंने कहा, एक अलग एनर्जी मिल जाती है. तो इससे क्या होता है कि जो हमारा प्रोफेशनल दायरा जो है, इसमें हमें काफी मदद मिलती है. तो आने वाले दिनों में सिंगिंग और पेंटिंग को तो और अच्छे से ये करना है. Perfect, sir. Nice to hear about this, sir. If I ask you your vision, mission, and goal in life for next 5 to 10 years from now, what do you think? Like, what are the areas you are still thinking to work on? Yeah, I'll say, goal and vision and mission. Basically to excel on whatever we do, that is the key. Upgrade skills. So, during the period of pandemic, we have learned that, these skills are going to help us. So then I thought that why not to continue my higher education also. So from IIM Nagpur, I have completed my this strategic management course. So basically वही है कि to excel on whatever the things we choose, that we need to be very good in that. That is only going to help us. And yes, ये सारी चीजें करते हुए अगर हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, मतलब स्टूडेंट आज बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो यंगर जनरेशन है ये काफी समझदार है और इनका ग्रास्पिंग पावर बहुत ही अच्छा है. एंड इनके पास में वो जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है वो शायद हमारे जमाने में नहीं थे. सो दिस पीपल आर लकी, बट ओनली थिंग इज दैट वी नीड टू कल्टिवेट देम. सो आने वाले 5-6 सालों में यही है कि जितनी भी सर्विसेज स्टूडेंट्स के लिए और यंगर जनरेशन के लिए दे पाए उतना कम. Correct. Guiding and supporting them in a right way is really important, because they have the energy, they have the zeal to do things, but वो knowledge वाली चीज जो है ना, that can add value to them. Yes. Rightly pointed out.
So now, sir, if I ask you like most important life lessons you have learned from your personal and professional journey, so what are Yeah. 2-3 things you would like to highlight? या पहली चीज तो ये है कि वी नीड टू बी अवेयर ऑफ आवर सेल्व्स। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम खुद के बारे में ही जान नहीं पाते हैं और हम बहुत ही कम समय खुद को देते हैं। तो टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ इज द फर्स्ट थिंग विच वी शुड डू, एंड बेस्ड अपॉन दैट वी नीड टू गेट द नॉलेज अबाउट आवर पोटेंशियल्स ऑल्सो एंड हाउ टू कल्टिवेट दोज। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज तो मैं ये कहूंगा कि नेवर लूज होप, दैट इज द थिंग। सो मैं भी काफी सारे मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर चुका हूँ, बट आज भी जो होता है डॉक्टर्स मुझे बोलते हैं, मेरा एंजियोप्लास्टी होने के बाद भी मैंने डॉक्टर से पूछा था कि आगे मैं सिंगिंग कंटिन्यू कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा व्हाटएवर। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, यू कैन, बहुत अच्छे तरीके से आप और कर सकते हैं। तो यही है कि मतलब खुद की ओर ध्यान देके हमें हमारी जो चीजें हैं, हमारी जो हॉबीज हैं, उनको कल्टीवेट करना है। करेक्ट, बिकॉज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि कई बार होता है ना, हम लोग जानते ही नहीं कि हम किस चीज को लेके पैशनेट है, हम हॉबीज हमारी क्या चीज है एक्चुअल में, या कौन सी वो चीज है जो हमको इंस्पायर करती है टू डू थिंग्स इन लाइफ. So that is really important. We explore ourselves, we start working on, and like whatever education, knowledge, experience is required to work on that area that we need to do. So rightly pointed out. Thanks for highlighting this. So, sir, since you've been working on like multiple activities, you are like in education field, you are also following your passion. So now, if I ask you, like, how you have successfully managed to achieve a work-life balance while pursuing a demanding career in engineering and education, and also activities participating in artistic endeavors like painting and music? Yeah. See, basically we need to have a time management. और जैसे कि लोग कहते हैं कि time management कुछ नहीं होता, it is all about priorities. So what are your priorities? So I think we need to have a better plans for day-to-day work. So journaling is one of the important thing. हम जो भी है ना, हमारे काम जो है वो लिखने का आदत डालें, डायरी मेंटेन करें, और कौन से काम प्रायोरिटी पे है उसके अनुसार अगर हम हफ्ते भर का प्लानिंग करें तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। हाँ, ये जरूर है कि हमको हमारी जो छुट्टी का टाइम है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होता है। तो अगर हम एक प्लान बनाए कि हफ्ते भर में हमारी प्रायोरिटीज क्या है, वो कौन से चीजें कैसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, और उसमें से मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, तो मैं यही कहूंगा कि जो टाइम वेस्ट होता है हमारा, उसको कन्वर्ट अगर हम करें फ्रूटफुल टाइम में, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें बनती जाती है। मैंने बहुत सारी चीज लोगों को देखा है कि जो मोबाइल के ऊपर जो है ना, वो काफी सारे रील्स हो गए, ये चीज हो गया, वो चीज हो गया। मजा तो तब है कि लोग आपके गानों के ऊपर रील्स बनाए, तो ये सबसे सही रहेगा। तो उसके लिए फिर क्या करना है, तो एक प्रॉपर प्लान के साथ में, और जैसे सैटरडे संडे छुट्टी का दिन है तो उसमें भी हम काम करते हैं, तो मैनेजेबल है। मुझे ऐसा लगता है कि 24 आवर्स आर सफिशिएंट टू हैव। ये जरूर है कि फोकस जरूर चाहिए, फोकस के बिना कुछ नहीं होगा। एक चीज जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें उस चीज को पकड़ कर रख के आगे उसमें मतलब किस तरीके से जाना है, ये तो टाइम टू टाइम प्लान आपको ही बनाना है। बट उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको एनकाउंटर करके आगे बढ़ते रहने, उसको छोड़ना नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। नहीं तो हम ये हो जाते हैं कि प्रॉब्लम्स आते हैं, हम डिस्करेज हो जाते हैं और उसके बाद में छोड़ देते हैं। तो लोग क्या कहेंगे, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट ये रहता है। अगर हम जैसे कि लोग कहते हैं कि ये उम्र में हमने कोई कोर्स ज्वाइन किया, या एजुकेशन में ही हम कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, या कोई दूसरी भी चीज है, तो लोग क्या कहेंगे, कैसा रहेगा, देन इतना टाइम निकाल पाएंगे। तो ये मतलब फियर एक रहता है कि इसमें जस्टिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि ज्यादा सोचने के बजाय अगर उतना टाइम हम उसी में इन्वेस्ट करके कुछ अच्छा करने का कोशिश करें तो ऑटोमेटिकली चीजें बनती जाती है। हाँ, perfect. Yes. Like you should always try to like do things which you like or which you have passion about. तो उसी के लिए टाइम निकालने के लिए if you think तो possible है, but अगर कोई चीज जबरदस्ती करनी हो ना, you would not be able to find time. Yes. So this is really important.
So on to this further, if I ask you, like, can you share some practical strategies or tips for individual who struggle with balancing their professional commitments and their passion or hobby? So what can they do? यस, मैं तो यही कहूंगा कि जिस समय जो काम करना है वही करना चाहिए, कि अगर हम ऑफिस में हैं तो ऑफिस का काम करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज होगा क्या कि वो मिसमैच हो गया तो हमको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है और फिर उतने सारे एफर्ट्स वेस्ट जाते हैं। तो अगर हम कोई एक काम में है तो उसको पहले कंप्लीट करें और फिर उसके बाद में सेकंड टास्क, तो टास्क बाय टास्क। और जैसे कि मैंने कहा ना कि कुछ एक आदत बना लें कि हम मतलब शेड्यूलिंग, कि ये काम सबसे पहले कौन सा प्रायोरिटी पे है, कौन सा सेकंड है, तो ये और एक थोड़ा सा फास्ट काम करने की आदत भी हमें डालनी पड़ेगी। अदरवाइज हमारा हम देखेंगे कि बहुत सारा हमें समय जो होता है ना हमारा, वो दिन में ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। कभी मोबाइल पे अगर हमने देखा कि स्क्रीन टाइम हमारा कितना है तो पता चलेगा कई कई बार तो 6-6 घंटा हो जाता है। तो उसमें से हम रियली कुछ काम का है या टीवी भी देख रहे हैं या जो भी हमारा दूसरी चीजें हैं, तो कितना समय हम हमारे इसके लिए यूज कर रहे हैं। तो एक चेकलिस्ट बनाए एवरी डे। मोबाइल में लिखना हो तो मोबाइल में लिखिए, टाइप कीजिए या मतलब पेपर ऑन पेपर करके। बट उससे क्या होगा कि हमारे दिमाग में एक क्लियर पिक्चर रहता है कि क्या क्या प्रायोरिटी है और उसके हिसाब से देन बाकी के काम भी हम रीशेड्यूल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि डिफिकल्ट तो स्टार्टिंग में होता है बट नामुमकिन तो नहीं है और अच्छा खासा आउटपुट इससे निकल सकता है। बाकी टिप्स तो मतलब काफ़ी ये है। मैं इतना ही कहूँगा कि जितना भी मतलब किया जाए उतना कम है, बट ये ज़रूर है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा करने के लिए मोटिवेशनल रहना और मतलब खुद में वो मोटिवेशन और खुद में वो रखने के लिए कुछ अच्छे थॉट्स या अच्छे वीडियोस ज़रूर देखें जिससे हमको कुछ करने का मतलब ये बना। तो ये भी एक मैं कहूँगा कि टिप्स ही है कि जो हमें अच्छा लगता है। आजकल के इसमें तो ये पूरे इंटरनेट के जनरेशन में तो नॉलेज इज लाइक एक्सपोनेंशियल। जहाँ पे भी जाओ तो सब रेडीमेड पूरा अवेलेबल है, सिर्फ ये है कि हम कितना उसको फॉलो करते हैं। तो व्हाट्सएप या जो भी चीजें हैं इसके ऊपर तो काफी सारी चीजें आती रहती है, बट ये जरूर है कि उसमें से इम्पोर्टेंट चीजों को हम ये रहे और मोटिवेटेड रहे और मतलब लोग क्या कर रहे हैं, वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग, व्हाट आर द एवेन्यूज, हमारे फील्ड में कौन सी एवेन्यूज अवेलेबल है, इसके लिए भी। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सिर्फ अदर कंटेंट्स ही देखें। इसमें तो काफी सारे मतलब कोर्सेज की या हमारा जो फील्ड है उससे रिलेटेड काफी सारी फील्ड्स या नॉलेज भी अवेलेबल रहता है। तो उसके ऊपर शॉर्टलिस्ट करके हमें क्या हमारे काम का क्या है ये जरूर हमने देखना चाहिए। Correct. Rightly pointed out. और इसी पे सर, if I ask you further, like what role does passion or interest plays in helping to relax, unwind, and recharge from demanding demands of your profession? And how do these creative outlets contribute to our overall well-being? Because these days, what we see is we have hectic life. Very lots of anxiety, tension. These things are there. So how we can come out of these things through passion or hobby following? Yeah, this is really very important because in today's world we have a lot of messy things, a lot of hectics, a lot of challenges, a lot of problems. और जो लोग मतलब थोड़ा सा हम अगर परफेक्शन की ओर जाते हैं, हमारी इच्छा ये रहती है कि जो भी काम हो अच्छा हो, परफेक्शन के साथ में करो, तो और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो चीजें है ना, तो मेंटल हेल्थ के ऊपर भी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लर्न टू अनलर्न एंड देन रीलर्न, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इससे हम क्या होता है ना, जो थोड़ा रिलैक्सेशन हमारे माइंड को चाहिए तो वो ये सारी चीजों से हमें मिल जाता है। इसलिए जो भी हमको अच्छा लगता है, गाना सुनना अच्छा लगता हो या बच्चों के साथ में खेलना अच्छा लगता हो या जो भी चीजें हम अच्छी करना चाहते हैं, तो वो हमने जरूर करना चाहिए और उसके लिए टाइम भी डेडिकेट करना चाहिए। देन वी कैन कम बैक टू आवर मेन थिंग्स। तो इससे क्या हो जाता है ना कि ये जो स्ट्रेस या बाकी सारी जो चीजें हैं इससे थोड़ा सा राहत मिलके माइंड रिलैक्स हो जाता है और हम अच्छे तरीके से
अच्छे एनर्जी के साथ में फिर से वो सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हर एक का मतलब ये जो चीजें है ना, ये हर एक के लिए अलग अलग है, हर एक का रोल अलग अलग है। मेरा रोल अलग है, किसी दूसरे का रोल अलग है, आपका रोल अलग है, बट हम हमारे रोल को इस लाइफ में कितनी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, ये भी एक चीज है। बट वो करते करते अगर हम किसी दूसरे को हार्ट को टच कर जाते हैं, या हमारा लाइफ अगर किसी दूसरे के लिए मोटिवेशन बन जाता है, तो इससे तो अच्छी चीज कोई दूसरी हो नहीं सकती। तो इसलिए जितने अच्छे काम हम करें, क्योंकि एक छोटी छोटी चीजों से ना बहुत बड़े बड़े काम बनते जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों से माइंड को रिलैक्स करना, या अच्छी बातें करना, किसी के साथ में किसी के लिए अच्छा करना, ये भी एक अलग आदमी के लिए रिलैक्सिंग होता है। तो ये चीजें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में ना ये बहुत रेयर हो गया है अच्छी चीजें। अगर हम कहीं पे भी देखें तो प्रॉब्लम्स है, और ये तो छोटे छोटे बच्चों के सामने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हमारे सामने भी है। बट मतलब काउंटर बैक करने के लिए हमें खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है। और ऑफ कोर्स यस, मेडिटेशन और ये सारी चीजें तो है ही है। तो हर कोई भी इसमें आप देखेंगे तो यही बोला जाता है, बट कितना हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं और कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। Right, very important. Like, if we start following these things in life, definitely it can make great change. And now, sir, if I ask you, like, what is your take on success? What are your feeling thoughts about it? Yeah, success is a relative term. How you perceive it, how you preview it. जो सक्सेस मेरे लिए वो शायद दूसरे के लिए कुछ अलग डेफिनेशन हो सकती है। बट as I said, excel on that particular thing is also a success. But what I will say is, अगर कंपटीशन, जो सक्सेस कैसा है कि कंपटीशन से भी रिलेटेड है, तो कंपटीशन तो मेरे ख्याल से खुद से ही होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो यही है। हम किसी दूसरे के साथ में कंपटीशन करके, या मान के चलिए कोई बड़ा क्रिकेटर है, बड़ा एक्टर है, बड़ा, उनके लिए तो मतलब यू कैन नॉट कंपेयर, किसी के साथ में भी आप कलीग से भी आप कंपेयर नहीं करना चाहिए। सबसे पहला कंपैरिजन तो हमारा खुद के साथ में होना चाहिए। और जो हमारा वर्जन है वो डे बाय डे अलग अलग वर्जन बनते जाते हैं। तो कल जो हम थे वो आज नहीं, मतलब ऐसा होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट ही होना चाहिए कल से आज से आने वाले दिनों में। तो ये जो चीजें है ना, इनमें से हम कितना निखर के आते हैं, और कितना हमारे से मन को कंट्रोल करते हुए हम डिसिप्लिन रहते हैं। सो आई थिंक ये सारी चीजें अगर हमें आ गई तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आएगा। किसी दूसरे से कंपेयर करने के बजाय हम खुद के ऊपर सबसे पहले ध्यान दें कि मेरा कंपटीशन मेरे खुद से है। तो मैं जितना अच्छा बनते जाऊंगा, मेरा वर्जन जितना अच्छा बनता जाएगा उतना, और कंपटीशन के लिए तो कोई एंड नहीं है, सक्सेस के लिए भी कोई एंड नहीं है। ये तो मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हम जब बचपन में पढ़ते रहते हैं तो हमारे को बोला जाता है कि अभी बस 10वीं कर ले, उसके बाद में तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में आता है 12th, फिर उसके बाद में आता है ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। ये तो सारी प्रोसेस है। तो इसमें जो है सक्सेस सिर्फ रिलेटिव बनते जाता है। तो सिर्फ ये है कि आर वी सेटिस्फाइड विथ आवरसेल्व्स। हम अगर हमारा बेंचमार्क या स्टैंडर्ड जितना ऊंचा रखे, और जितना एक खुद के लिए एक अलग टारगेट बना के रखे, और उसको अचीव करने के लिए फोकस रहे, और वो जैसे वो अचीव होने के बाद में नेक्स्ट टारगेट, तो एक एक करके अगर हम खुद के ऊपर काम करें, खुद का प्रोफाइलिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आज के दौर में ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आई थिंक मेरे लिए मायने रखती है। तो अगर ये, और पूरा सक्सेसफुल, वी नीड टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑल्सो, कि हम थोड़ा सा दो बातें और कहना चाहूंगा कि हमेशा हम ये सोचते हैं कि लाइफ, हमारा जो लाइफ है 70-80 ईयर्स, ये क्या मायने रखता है। यूनिवर्स इज देयर सिंस बिलियंस एंड बिलियंस एंड ईयर्स। सो इसमें हमारे ये 70-80 साल क्या मायने रखते हैं, और उसमें भी अगर हम हमारा टाइम बाकी सारे एक्टिविटी में वेस्ट कर दे, तो फिर सक्सेस की तो बात ही नहीं रहे। तो जितना टाइम हम यूटिलाइज करें, तो खुद को अंडरस्टैंड करके, खुद के पोटेंशियल को जान के, और खुद को ही कॉम्पिटिटर मान के एक अच्छा वर्जन लाने की कोशिश करें, तो आई थिंक दैट विल बी सक्सेस। Perfect. So, any message in or advice for our viewers and listeners? या मैं इतना तो बड़ा नहीं हूँ कि एडवाइस या कुछ ये कह सकूँ, बट यस, एक्सपीरियंस से या व्हाटएवर थिंग्स आई सेड, दैट वी नीड टू बी कमिटेड टू आवरसेल्व्स।
वी नीड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। और कहीं पे भी जैसे हमको लगता है कि शॉर्टकट लेने चाहिए लाइफ में, तो वो कभी भी नहीं होना चाहिए। हार्डवर्क इज द ओनली की टू प्रॉस्पर। तो ये जो चीजें होती है ना, परफेक्शन तो होता है, अभी हर एक का उसके बारे में अलग अलग व्यू रह सकता है, बट कोई चीज परफेक्टली करना ये भी एक इट्स एन आर्ट। तो Correct. जितना अच्छा काम कर सके, और एक चीज सिलेक्ट करने के बाद में परस्यू इट, वो एक अलग लेवल तक लेके जाने का हमें हौसला रहना चाहिए। Correct. Rightly pointed out. Very important, sir. And thanks for sharing. And you have shared your journey that was really inspirational. You like not only about your qualifications and experiences, but also like how you are following your passion, and not only following your passion for your own self, but also supporting others through your art gallery. That is even amazing. And like you have also shared the story that you have created a patent which is really helpful for the welfare of, or like beneficial for patients who are bedridden. For them it is kind of a boom that they can think of like using their life or maybe wheelchair the way they want actually, in a right and prospective way. So that's really amazing that you have created that thing also. So thank you for that, and I really enjoyed the conversation. And looking forward to hear more from you soon again, sir. And thank you so very much once more. Yeah, thanks a lot, Jitendra. It was nice interacting with you. And as I say कि हर मोमेंट लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उसमें से हमको कुछ ना कुछ तो सीखना ही चाहिए। तो खुद के लिए अगर हम कुछ टारगेट्स बनाए, मोटिवेशन लेवल ऊंचा रखें, तो आने वाले समय में हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट, इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपनी मेहनत से ही तू खुद बना अपनी पहचान, अपनी मेहनत से ही तू खुद अपनी बना पहचान, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान। That's true. Because if we try to find people with the same name as we have, Yes. so many people, rightly Yeah. said. So I also would like to share your social media links along with the interview so that people Yeah. can be in touch with you, take your help and guidance wherever they Yeah. feel like. And you already been very supportive for like PhD students. Yeah. So definitely would be helpful for them. So guys, don't forget to check that out too. And finally, thank you so very much everyone for watching and listening. I hope you all must have gathered a lot of information and enjoyed watching it. And don't forget to like, share, subscribe, comment, and share with your family and friends. And thank you so very much. Have a good time. Thank you.